Okay, sure. So, good evening, everyone. Welcome to day two of the online National Forensic Science workshop organized by Shivi Forensics. It's been a great start to our journey, and today we will explore another exciting and innovative aspects of forensic science. In today's session of workshop, we will be diving into the fascinating world of criminal forensics, specifically focusing on the interesting and relevant application of DNA technology in criminal forensics. Our speaker for today is highly respected Ms. Srishti Sharma ma'am. Thank Ma'am is you. currently a faculty member at Sage University Indore, where she imparts knowledge and shares her vast experience in the field of science and forensics. She brings a strong foundation in teaching, research, and practical applications of DNA technology in criminal investigation. Before her current role, Ma'am served as an assistant professor at Sri Cloth Market Institute of Professional Studies, where she not only taught but also contributed significantly to academic workshop and practical session on topics like chemistry and its application. Her diverse expertise include fields like organic farming and plant tissue culture, which reflect her commitment to practical science. With a wealth of experience, Ma'am is here to share her knowledge and offer insights into how DNA technology is transforming the landscape of criminal forensics. Without further ado, let's welcome Ms. Srishti Sharma ma'am to guide us through the fascinating applications of DNA technology in criminal forensics. Thank you so much, Prachi ma'am. Thank you so much. Prachi ma'am, can you please share the PPT from your side? Am I audible? Prachi ma'am. Yeah, sure. हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आ गए हैं सारे लोग? Okay, Sam. Great. So today's our topic is about everything is about to DNA. मेरा पीच सही है मेरा? हेलो. ओके. थम्स दिख रहे हैं मुझे. Okay, can we start now? Uh, okay. Thank you so much, Prachi ma'am, for giving me this opportunity. Thank you so much. Now today we have the topic related to DNA. Let me tell about what is DNA. First, we have to discuss about what is DNA. क्या होता है डीएनए? कोई बताना चाहेगा? इससे पहले कुछ पढ़ा है डीएनए के बारे में? सारे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? ओके, फाइन. व्हाट इज डीएनए? क्यों पढ़ना है हमें डीएनए? फोरेंसिक में क्यों डीएनए जरूरी है? कोई आंसर करना है? ओके. फोरेंसिक्स में जेनेटिक्स के लिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि उसमें टू आइडेंटिफाई जेनेटिक्स. ओके सर. व्हाट इज जेनेटिक्स देन? नेक्स्ट मैम जो क्वेश्चन वाइज हमें व्हाट हमारे इज. पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं. ओके, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी एनकोड हुई है हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, दैट मीन्स हमें. प्राची प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. ओके. डीएनए का फुल फॉर्म है, हमें सभी को पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. अच्छा, एक अदर देन टॉपिक में ये चीज कहूंगी कि डीएनए फोरेंसिक्स से कैसे मीटअप है. जब भी हम किसी क्राइम सीन पर है, कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमें कोई हेयर का सैंपल मिला है, कोई ब्लड का सैंपल है, कोई टीथ का है, या नेल का कोई सैंपल है, जहां से हमारी बॉडी का कोई भी इंटरनल ऑर्गन से कोई भी मेटाबॉलिक रेट्स अगर कहीं पर फ्लक्चुएट हो रही है, वहां का कोई मिला है डीएनए का सैंपल, तो मैच करने के लिए हम डीएनए को पढ़ते हैं. बहुत बेसिक सा बता रही हूँ. थ्रू द टॉपिक हमें समझ में आता जाएगा क्या है. डीएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. पॉलीमर है ये 2 न्यूक्लियोटाइड चेन का. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहा है? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कॉइल कर और 2 हेलिक्स के फॉर्म में एक दूसरे से रोल ऑन होते हैं. सारी तरह के सेल में होंगे, नॉट ऑल.
found in all prokaryotic and eukaryotic cell and in many viruses, not in all viruses, in many viruses. DNA codes information, genetic information for the transmission of inherited traits. मतलब जो भी हम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं वो डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. प्राची प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. डीएनए का लोकेशन कहाँ पे है. अगर मैं प्रोकैरियोटिक बेसिकली अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ हमारा फोकस ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल पे होगा. यूकैरियोटिक सेल में एक प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. एनिमल सेल का अगर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े तो सबसे पहले हम अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो एनिमल सेल में सबसे पहले होगी सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म जो भी वहाँ का लिक्विड मटेरियल है जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, सारी सेल की फंक्शनिंग हो रही है, सेल ऑर्गेनल की फंक्शनिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. फर्स्ट मिलेगा हमें सेल मेम्ब्रेन, देन सेल का साइटोप्लाज्म, उसी में सेल ऑर्गेनल्स है और सेंटर में है न्यूक्लियस. सभी को पता है न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेंटर में, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल. न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के ऊपर बैठा है डीएनए. एग्जैक्ट लोकेशन सभी को समझ में आए कहाँ पर है सेल में डीएनए का और क्रोमोसोम क्या रोल प्ले कर रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कैसे कॉपी हुई है सेम इंफॉर्मेशन. मतलब क्रोमोसोम इज अ काइंड ऑफ व्हीकल जो डीएनए के सीक्वेंस को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेकर. ओके. प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए है लेकिन वो साइटोप्लाज्म में है, कवर्ड नहीं है. विद इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम क्रोमेटिन प्रोटीन सच एज हिस्टोन कॉम्पैक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड डीएनए. मतलब ऑर्गेनाइज कहाँ पर है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्म में. अच्छा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. ओके. हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट थे 1869 में. इन्होंने एक डिस्कार्डेड बैंडेज थी, वहां से उस बैंडेज में पस जो था पेशेंट का, उस पस में से डीएनए को आइसोलेट किया था. लेकिन उन्होंने डीएनए को डीएनए नाम नहीं दिया था. न्यूक्लियन सबसे पहले डीएनए को हमने पढ़ा था और डीएनए को टर्म दी है जैकेरिस नाम के साइंटिस्ट ने जो कि थे लंदन के, लंदन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डीएनए नाम दिया था. 1929 में लेविन आइडेंटिफाइड डीऑक्सीराइबोस शुगर इन डीएनए. मतलब बहुत एग्जैक्ट डीएनए का स्ट्रक्चर फ्रेडरिक ने नहीं दिया था, शुगर को उसमें आइडेंटिफाई किया था लेविन नाम के साइंटिस्ट ने. हिस्ट्री में मैंने और भी कुछ स्लाइड्स ऐड की है. प्राची प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. हिस्ट्री वैसे आप लोग एक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, नॉट. ओके नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट. हिस्ट्री की कुछ एक दो स्लाइड्स और है. ओके. सबसे मेन है स्ट्रक्चर. द टू डीएनए स्ट्रैंड आर नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. पॉली हम कब यूज करते हैं जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर्स. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक से दो, sorry, the two DNA strands are known as polynucleotides as they are composed of simple monomeric units called nucleotides. एक मोनोमर है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड. जब वो बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है तो दैट इज कॉल्ड polynucleotide. The two strands of DNA run in opposite direction to each other and thus anti-parallel. हमें पता है कि DNA जो है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और वो एंटी पैरेलल कनेक्टेड होता है एक दूसरे से. Each nucleotide is composed of, एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, वन ऑफ फोर नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोबेसिस. बेसिस कौन से, चार तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं डीएनए में, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन. एक शुगर होगा जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. मतलब डीएनए के तीन मेंबर है डीएनए फैमिली में. नाइट्रोजन बेसिस जो कि है चार तरह के, फोर टाइप्स के, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन. एक शुगर है जिसका डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक है फॉस्फेट ग्रुप. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड.
Okay. Nucleotides are linked by covalent phosphodiester bonds forming a sugar phosphate backbone. जो न्यूक्लियोटाइड से वो एक बॉन्ड है कोवेलेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है शुगर से. शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से नाइट्रोजन बेसिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है? जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगी. एडेनिन पेयर विद थायमिन, मतलब जो एडेनिन नाइट्रोजन बेस है वो थायमिन से कनेक्टेड है विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एंड साइटोसिन इज पेयर्ड विथ guanine with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है. So noted, adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds and cytosine pair with guanine with 3 hydrogen bonds. ये स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है. एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 1 and 2. एंड यहाँ पर ग्वानिन कनेक्टेड है, बॉन्डेड है साइटोसिन के साथ विथ 1, 2 and 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. नेक्स्ट. ओके, ये है हमारा मेन स्ट्रक्चर जो कि यूकैरियोटिक सेल में हमें मिलेगा. अटैच टू ईच अदर शुगर इज वन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोबेसेस. कोई भी न्यूक्लियोबेस होगा, it is a sequence of these 4 nucleobases along with backbone that encodes genetic information. जो हिस्टोन प्रोटीन हम पढ़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एज एन हिस्टोन प्रोटीन वो कॉपी होगी नेक्स्ट जनरेशन में. कौन सी होगी वी डोंट नो, लेकिन जो हम अपने पेरेंट्स से लेकर आए वो यही हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू लेकर आए. Within eukaryotic chromosome, chromatin proteins such as histone compact and organize DNA. These compacting structure guide an interaction between DNA and other proteins, helping control which part of the DNA are transcribed. Transcription क्या है? सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी, और जो ट्रांसक्रिप्ट हो गई वही कैरेक्टर हमें एक्सप्रेस होंगे एज एन जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, डायमेंशंस के बारे में बात करें, बहुत ज़रूरी है डीएनए में डायमेंशंस. हेलिक्स की पिच देखिए, ये जो हेलिक्स है एक पिच से लेकर दूसरी पिच के बीच का जो डिस्टेंस है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और नैनोमीटर में अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर्स. डायमीटर होगा एक हेलिकल के बीच 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 2.0 नैनोमीटर्स. बेस पेयर पर टन, मतलब एक टन में अप्रोक्सीमेटली 10 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ठीक है, ये डायमेंशन होता है. मतलब एक डीएनए अगर हम पढ़ें तो उसका जो हेलिक्स पीच होगा वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. डायमीटर होगा, अगर तीनों डायमेंशन से हम पढ़ेंगे उसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही है. डायमीटर होगा 2 नैनोमीटर एंड बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली 10 पर टन होगा, अप्रोक्स 10. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब 2 टर्म्स होती है डीएनए के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं, एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड. नहीं कंफ्यूज होना है. न्यूक्लियोसाइड वो है जब नाइट्रोजनस बेस शुगर से अगर बॉन्डिंग करता है तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. व्हेन नाइट्रोजन बेस लिंक्ड टू शुगर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. इसे हम याद कैसे रखेंगे? न्यूक्लियो एस, एस मीन्स शुगर. जब न्यूक्लियर बेस के साथ शुगर अटैच होगी तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. एंड न्यूक्लियोटाइड when base is linked to sugar and one of more phosphate group. एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा phosphate group है बेस और शुगर के साथ, then it is called nucleotide. डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है. when base is connected to sugar that is called nucleoside, and when base, sugar and phosphate are connected that is called nucleotide. Okay, next please. ओके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? हमने स्टार्टिंग में टर्म पढ़ी थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड a biopolymer comprising multiple linked nucleotides as in DNA is called polynucleotide. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से लिंक्ड है दैट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और उसकी जो बैकबोन है वो कौन बनाना है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. यही 3 चीजें मिलकर हमारा डीएनए को कंप्लीट करेंगे. फिर से मैं बता रही हूँ, एक शुगर बेस है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, मोर देन भी हो सकते हैं, मोर देन 1, और एक है हमारे पास बेसिस जो हमने 4 पढ़े थे, एडेनिन, थायमिन,
यूरेसिल एक होता है जो आरएनए में यूज होता है ऑन द प्लेस ऑफ थाइमिन. एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड AC adenine, thymine, guanine and cytosine. Okay, next please. Okay, sugar in DNA. Sugar का नाम है deoxyribose. पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज मतलब मीन्स 5 कार्बन शुगर है. 1, 2, 3, 4 एंड O की प्लेस पर 5th. The sugar are joined by phosphate group that form phosphodiester bond. स्टार्टिंग में बताया था phosphodiester bond से कनेक्टेड होते हैं. The third and fifth carbon atom of adjacent sugar rings. Third and fifth जहाँ पर H and OH लगा है और दूसरी तरफ है HOCH2 and H. थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर कनेक्टेड है फॉस्फेट ग्रुप दैट इज कॉल्ड मिलकर बना रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि है 5 कार्बन चेन से बनी हुई या 5 कार्बन रिंग से बनी हुई. नेक्स्ट प्लीज. Nitrogenous bases. Okay. The 4 bases found in DNA are adenine, cytosine, guanine and thymine. 4 bases होंगे adenine, cytosine, guanine and thymine. The nucleobases are classified into 2 types. इसको हमें फिर से further 2 types में divide किया है. That is purines and pyrimidines. Adenine and guanine comes under the category of purines and pyrimidines comprises cytosine and thymine. The purines A and G means adenine and guanine which are fused with 5 and 6 membered heterocyclic compound. The pyrimidines the 6 membered ring means purines जो है वो 5 कार्बन रिंग्स के हैं और pyrimidines जो है वो 6 कार्बन रिंग्स के हैं. That is called cytosine and thymine. Next please. Okay. Purines, adenine and guanine. Pyrimidines, cytosine and thymine. और जो ये यूरेसिल है ये हम आरएनए में पढ़ते हैं on the place of thymine. Next. Grooves. Okay. 2 grooves होते हैं. 2 types of grooves are found in the structure of DNA, basic structure of DNA. एक कॉइलिंग में जो डीपली ग्रूव होगा दैट इज कॉल्ड मेजर ग्रूव और एक जो बाहर से हमें दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड माइनर ग्रूव. द मेजर ग्रूव इज 22 आर्मस्ट्रॉन्ग वाइड होगा. जो मेजर है जो थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा दैट इज कॉल्ड मेजर ग्रुप और उसकी जो वाइडनेस होगी वो होगी 22 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द माइनर ग्रुप विल बी 12 आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 1.2 नैनोमीटर इन विड्थ. उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 1.2 नैनोमीटर and major group will be 22 Armstrong means 2.2 nanometer. Next, base pairing. Okay, हमने zip unlock की है तो जो DNA की जो coiling होती है और uncoiling होती है बहुत easy है. अगर हाई टेम्परेचर पे भी DNA को रख देंगे तो वो बहुत जल्दी बेस नाइट्रोजन बेस को तोड़कर फिर से नए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है. इन अ DNA double helix, each type of nucleobase on one strand bonds with just one type of nucleobase on the other strand. This is called complementary base pairing. मतलब एक strand का जो नाइट्रोजन बेस है दूसरे strand के नाइट्रोजनस बेस से जब बॉन्डिंग कर रहा है that is called complementary base pairing. Purines form hydrogen bonds to pyrimidines. Purines हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू pyrimidine से कनेक्टेड होंगे. Adenine bonding only to thymine and 2 hydrogen bonds. Adenine thymine के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगा एंड साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगा. हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डीएनए डबल हेलिक्स कैन बी इजीली ब्रोकन एंड रीजॉइन. मैंने बताया कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे रख दें बहुत ज़्यादा नहीं तो भी इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और फिर से रीजॉइन हो सकता है. Allowing the strands of separate like a zipper under mechanical force or high temperature, a crucial process in DNA replication.
रेप्लिकेशन हमने पढ़ा है, जब भी हमें कोई स्टडी करनी है, अगर डीएनए के सीक्वेंस में हमें कोई चेंज, हमें उस रेप्लिकेटेड डीएनए को फिर से अनकॉइल करके कुछ नए बेस पेयर या नए प्रोटीन्स को फॉर्म करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. और यहाँ पे क्रूशियल प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें डीएनए के सीक्वेंस को चेंज करना है, और ये इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी थ्रू हाई टेम्परेचर और सम मैकेनिकल फोर्सेस. नेक्स्ट प्लीज. ओके, वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए से बहुत गहरा रिलेशन है. वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल और एक्सेप्टेड मॉडल है. इन 1950s इन 1950s दोनों साइंटिस्ट साथ में काम कर रहे थे इन कैम्ब्रिज, इंग्लैंड. James Watson and Francis Crick were able to piece together the links of the DNA molecule using Franklin discoveries. इन्होंने फ्रैंकलिन की जो डिस्कवरीज थी उसी को मॉडिफाई करके कुछ स्ट्रक्चर में नई चीज़ें डिस्कवर करके और एक स्टेबल और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दिया फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन ने, जिसे हम कहते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. नेक्स्ट प्लीज. बेसिक फीचर्स इस मॉडल के क्या है? In a DNA molecule, a right-handed double helix is made up of a series of strands of two polynucleotides spirally wrapped around each other and twisted along a common path. सबसे ज़्यादा अगर मेन फोकस हम इस मॉडल में देखें तो ट्विस्टिंग इन्होंने बताई थी कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी जो ट्विस्टिंग है वो बहुत मैटर करती है किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर. Next, the two strands run in opposite direction with the fifth ending to one chain facing the third ending of the other. 5 to 3, 3 to 5 रेशो चलता है नाइट्रोजन बेस पेयर के कनेक्शंस को, जिससे एंटी पैरेलल, कॉमन वर्ड्स में कहें तो एंटी पैरेललिज्म बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. द शुगर फॉस्फेट बैकबोन रिमेन ऑन द एक्सटीरियर. जो शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड है वो बाहर की तरफ रहेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में, और जो नाइट्रोजनल बेसिस है वो सेंटर में होंगे. द प्यूरिन्स एंड पेरीमिडिन्स बेसिस आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द हेलिक्स. ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसकी जो कॉइलिंग है जैसे हमने ग्रूव्स पढ़ा था एग्जैक्ट वैसी है और राइट हैंडेड है. नेक्स्ट स्लाइड में शायद वही है, प्लीज नेक्स्ट. ओके, बेसिक फीचर. The two series are kept together by hydrogen bonds formed between the purines and pyrimidine bases in opposite strand. हमने देखा था जो purines है वो pyrimidines के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है. एक स्ट्रैंड के प्यूरिन्स दूसरे स्ट्रैंड के pyrimidine से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में इन अपोजिट स्ट्रैंड. Adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds and guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonds. Following the base pairing rule, जिसे हम Sheggoff's rule भी कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे. Making the DNA strand complementary. जो डीएनए की कॉइलिंग है यही कॉम्प्लीमेंटेशन की वजह से पॉसिबल है, और Sheggoff's रूल से ये कैसे इसका बेस पेयरिंग कनेक्शन हम देखेंगे वो Sheggoff's रूल के थ्रू हम पता लगाएंगे. The base sequence varies throughout a polynucleotide chain. A certain sequence of bases carries genetic information. ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस है डीएनए के ऊपर वो सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करें. Only those genes are carry genetic information which transcript. Next, please. Okay, basic feature. The constitution of the base of the DNA follows Sheggoff's assumptions. Not stable है ये, Sheggoff's rule stable नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से मैच करता है. According to which adenine pairs with thymine and guanine paired with cytosine.
इनका जो दोनों का रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए, वही प्रूव करेगा कि जो बेस पेयरिंग है वो अकॉर्डिंग टू शेगॉस रूल है। द डीएनए हैज अ डायमीटर ऑफ 20 नैनोमीटर, हम पहले भी देख चुके हैं। The adjoining bases are 0.34 nanometer or 3.4 Armstrong along the axis part. The length of a full helix turn is 3.4. एक हेलिक्स की मतलब अराउंड 10 नाइट्रोजनस बेसिस का जो टर्न है उसकी जो लेंथ होगी वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की होगी. द लेंथ ऑफ अ फुल हेलिक्स टर्न इज 3.4 नैनोमीटर और 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, implying that there are 10 बेस पेयर पर टर्न. मतलब एक टर्न में हेलिक्स की ये जो टर्न हम देख रहे हैं इसमें 10 बेस पेयर्स अराउंड होंगे. A small groove called the minor groove and a deep groove known as major groove हम पहले भी देख चुके हैं. Run across the DNA helix. Alternate रहेंगे major and minor grooves. Next please. Types of DNA. डीएनए के अगर बेसिकली हम टाइप्स को देखें तो बहुत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेसिक हम पढ़ते हैं ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए. इट इज़ मोस्ट एक्टिव अलॉन्ग विथ अदर फॉर्म्स. ए डीएनए की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डीएनए है, बहुत रूम टेम्परेचर पे भी ब्रेक हो जाता है. हेलिक्स इज राइट हैंडेड से शॉर्टर मोर कॉम्पैक्ट हेलिकल स्ट्रक्चर. इसके जो हेलिक्सेस है वो बहुत छोटे, मतलब मेजर और माइनर ग्रूव्स बहुत पास होते हैं. राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है. फेवर्ड कन्फर्मेशन एट लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन में भी ये ब्रेक हो जाएगा. इसे ब्रेक होने के लिए बहुत टेम्परेचर की जरूरत नहीं है. बी डीएनए जो हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डीएनए दिखते हैं वो बी टाइप ऑफ डीएनए है. कन्फर्मेशन है. हेलिक्स इज राइट हैंडेड सेल्स. इसकी भी जो हेलिक्स होगी वो स्टार्ट होगी राइट हैंडेड टर्न से. फेवर्ड कन्फर्मेशन एट हाई वाटर कंसंट्रेशन, मतलब इसे जब हम आइसोलेट करेंगे तो इसे जो कंसंट्रेशन चाहिए आइसोलेशन के लिए वो हाई वाटर कंसंट्रेशन चाहिए. जेड डीएनए मोस्ट एक्टिव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिक्स इज लेफ्ट हैंडेड. इसका जो एक मेजर पॉइंट है जेड डीएनए का ये है कि ये लेफ्ट हैंडेड होगा. नेक्स्ट प्लीज. ए फॉर्म राइट हैंडेड हमने देखा था. ग्रूव्स हमने देखे थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था. मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में कोई डिफरेंस हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है ए फॉर्म में. बी फॉर्म जैसे हमने अभी स्टेबल स्ट्रक्चर पढ़ा था, एग्जैक्ट उसी को मैच करता है. और जेड फॉर्म हमने देखा है कि बेस पेयरिंग मेजर और माइनर ग्रुप्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, ऑल्टरनेट भी नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. डिफरेंस है ये ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए. इसका जो हेलिकल सेंस है, ए डीएनए राइट हैंडेड होगा, बी डीएनए इज आल्सो राइट हैंडेड एंड जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड. डायमीटर ए डीएनए का होगा 26 आर्मस्ट्रॉन्ग, बी डीएनए का अप्रॉक्सीमेटली 20 एंड जेड डीएनए का अराउंड 18. बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बी डीएनए में हम देखेंगे 10 है, राइट हैंडेड है. ए डीएनए में 12 हेलिकल पर टर्न होगा और जेड डीएनए में भी 12 होगा. हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, मतलब हेलिक्स की बाहर जो फॉस्फेट और शुगर ग्रुप्स है उसकी वजह से उसका राइज कितना है. तो ए डीएनए का है 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, बी डीएनए का है 3.4 और जेड डीएनए का है 3.7 आर्मस्ट्रॉन्ग. बेस स्टिल नॉर्मल टू द हेलिक एक्सिस. अगर हम एक्सिस की बात करें तो इस पर जो बेस टर्न होगा वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा ए डीएनए के लिए, बी डीएनए के लिए 6 डिग्री एंड जेड डीएनए के लिए 7 डिग्री. ग्लाइकोसिल बॉन्ड कंफर्मेशन जो हमने पढ़ा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंटीपैरेलिज्म और जेड डीएनए में होगा ओनली फॉर पिरामिडेंस. तो क्वेश्चन अगर आता है, एक्सेप्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो प्लीज मेक श्योर जेड डीएनए पे क्वेश्चंस बनेंगे. नेक्स्ट प्लीज. इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए. ओके, क्यों हमें ज़रूरी है डीएनए को पढ़ना. इंफॉर्मेशन तो पास ऑन हो रही थी. ओके,
Carrier of genetic information, DNA holds the instruction for the development, functioning, growth, and reproduction of all living organisms. It serves as the blueprint of life. Okay. क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हम कितना रिजेंबल करते हैं इन केस ऑफ आई कलर, हेयर कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, एवरीथिंग. होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ, मतलब फंक्शनिंग भी बहुत हद तक हमारे पेरेंट्स की जैसी होगी. चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, पीच, हाई, लो, सब कुछ. Next is heredity and evolution. DNA is passed from one generation to the next, ensuring the inheritance of traits and driving evolutionary process. Okay. इवोल्यूशन हम सभी को पता है, जैसे जैसे कैसे जनरेशन टू जनरेशन मॉडिफिकेशन अगर आए हैं तो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन. मतलब हमने अब तक कितना खुद को इवॉल्व किया है. जो बैकग्राउंड में डायग्राम दिख रहा है हम सभी ने देखा हुआ है. इसी को इवोल्यूशन कहा गया है कि हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की. कुछ जो चेंज आए हैं वही इवोल्यूशन है. तो डीएनए बहुत मेजर रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में भी. प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए कोड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विच आर एसेंशियल फॉर सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है थ्रू द सेल, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सिंथेसिस चल रहा है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, तो वो भी डीएनए के थ्रू कैरी ऑन हो रहा है. अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कंपैरेटिव डीएनए एनालिसिस reveals relationship among species helping to construct phylogenetic trees. अच्छा, मैं अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ, अगर मुझे साइंटिफिकली प्रूव करना है तो वो डीएनए से होगा. कितना मेरा डीएनए उनके साथ मैच कर रहा है. तो अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कंपैरेटिव डीएनए एनालिसिस, मुझे कोई दो सस्पेक्ट्स है मेरे सामने और मुझे पता लगाना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर काइंड ऑफ क्राइम और एनीथिंग एल्स. तो उसे कहा जाएगा कंपैरेटिव डीएनए एनालिसिस. जिससे डीएनए मैच कर जाएगा वही उसका करता धरता जो भी है, जो भी हमारी स्टडी उस पर डिपेंड करेगा. रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज, कैसे मैं रिजेंबल करती हूँ अपने पेरेंट्स को, किस काइंड में, वो भी हम डीएनए के स्ट्रक्चर से, सॉरी, डीएनए के एनालिसिस से पता कर सकते हैं. हेल्पिंग टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्रीज. फाइलोजेनेटिक ट्रीज मीन्स कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू हम में इवोल्यूशन हुआ है और कितने हम रिजेंबल कर रहे हैं, उसका एक डायग्राम होगा जिसे हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री. और नेक्स्ट प्लीज. Importance of DNA in forensic science. Okay. क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, नाम से हमें समझ आ रहा है डीएनए प्रोफाइलिंग आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल विथ हाई एक्यूरेसी. जो डीएनए टेस्ट होते हैं वो लास्ट होता है और सबसे एग्जैक्ट टेस्ट होता है फॉरेंसिक साइंस की स्टडीज में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू. तो हम फॉरेंसिक पढ़ रहे हैं तो हम सभी को पता है कि जो डीएनए टेस्ट है वो होता क्रूशियल है, लेकिन जो उसका आउटपुट होगा, जो आंसर होगा, वो एक्यूरेसी के साथ हमें मिलेगा और इसीलिए क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में हमें बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट इज क्राइम सीन एनालिसिस. डीएनए एविडेंस कनेक्ट सस्पेक्ट टू क्राइम सीन. ओके, हमने कहीं से भी सैंपल कलेक्ट किया और जो सस्पेक्ट है उसके डीएनए से हमने अपना सैंपल के डीएनए के सीक्वेंस को मैच किया, बहुत इजीली हमें आंसर हमें मिल जाएगा. एक्सनरेशन, इट हेल्प्स प्रूव इनोसेंस इन रॉन्गफुल कन्विक्शंस. अगर कोई कन्विक्शन है जो रॉन्ग है तो हम उसके डीएनए के प्रोफाइलिंग के थ्रू भी हम अपने आंसर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अगर कोई इनोसेंट है तो उसे इनोसेंट प्रूफ कर सकते हैं. विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, मतलब ओवरऑल हमें यही समझ आ रहा है कि डीएनए के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं. अगर कोई इनोसेंस है तो उसे इनोसेंस प्रूव करेंगे, अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उस श्योरिटी के साथ हम अपना केस फॉरवर्ड करेंगे. वॉट एवर. क्राइम सीन लिंक्स, मैचेस डीएनए फ्रॉम एविडेंस टू सस्पेक्ट, वही मैंने बताया. परसेंटेज टेस्टिंग, establish पैटर्निटी और फैमिली टाइज. ओके, परसेंटेज टेस्टिंग इज कि दो भाइयों के बीच लड़ाई हुई है किसी भी वजह को लेकर, जो कि
अंकल आंटी और वैसे कजिन्स थे, तो उनके बीच में कितना परसेंटेज उनके फादर से मैच कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज टेस्टिंग। कोल्ड केस सॉल्विंग, कोल्ड केस में बहुत टाइम से कोई फाइल खुली नहीं है और अभी अभी कुछ उसमें टर्न्स आए हैं, कुछ ट्विस्ट आए हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड केस सॉल्विंग। रिविजिट्स अनसॉल्व केसेस विथ न्यू डीएनए मैचेस, तो वही कि अगर हमारे पास कुछ बहुत टाइम से जो केस रखा हुआ था और हमें अगर कुछ मिला है डीएनए से के थ्रू, अगर हम उसको पता लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड केस सॉल्विंग। नेक्स्ट प्लीज। ओके, डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? हमारे पास सैंपल है, तो बहुत सारी स्टेप्स होती है, मैंने कुछ कॉमन ऐड किए यहाँ पर। सेल लाइसिस, ब्रेकिंग ओपन सेल्स टू रिलीज, मतलब सेल के अंदर जहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पे जो डीएनए है, हमें क्या करना पड़ेगा? सेल वॉल, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर कर डीएनए को बिल्कुल भी हमें डिस्कार्ड या डीएनए का ध्यान रखते हुए सेल मेम्ब्रेन को रिलीज करना है। These can be achieved using mechanical disruption and chemical agents. अगर mechanical disruption करेंगे तो through grinding और homogenization. Homogenization means जो हमारा solution है उसको हम homogenate करें equal quantity में, और जो हमें output मिलेगा वो डीएनए हुआ, लेकिन उसके साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं कि बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल भी उसमें ऐड हो जाते हैं मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन के और केमिकल एजेंट्स के थ्रू। केमिकल एजेंट्स हमारे हैं डिटर्जेंट्स लाइक एसडीएस, ट्राइटोन एक्स 100 भी होता है, 1000 भी होता है। रिमूवल, सेकेंड जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, सेल लाइसिस, मतलब सेल की मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को लाइसिस करना, तोड़ना। रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंटेमिनेंट्स, जो भी सेल जहाँ पर डीएनए सबसे अंदर है और उसको डीएनए को सिक्योर करके बाकी सब चीज़ों से बाहर निकलना बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, तो वो हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, प्रोटीज टू रिमूव प्रोटीन्स एंड आरएनएस टू डिग्रेड आरएनए। डीएनए के आसपास सबसे ज़्यादा जो हमें मटेरियल मिलता है वो कौन सा है? प्रोटीन्स एंड आरएनए। प्रोटीन्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लेंगे हम प्रोटीन्स को, आरएनए के थ्रू हम डाइजेस्ट कर लेंगे आरएनए को, और जो मटेरियल हमें मिलेगा वो प्योर डीएनए होगा। सेकेंड है फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन टू सेपरेट प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। इसमें भी वही अदर मटेरियल्स भी ऐड हो जाते हैं, तो ये उतना एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है कि हमें केवल प्योर डीएनए मिले। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, हमें नाम से समझ में आ रहा है। यूजिंग अल्कोहल, अल्कोहल अब हम ले सकते हैं इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ के साथ जब हम अल्कोहल और अपने सैंपल को ऐड करेंगे तो जो हमें आउटपुट होगा, जो प्रेसिपिटेशन मिलेगा, वो एंड में जो मतलब जो बेस में मिलेगा वो होगा प्योर डीएनए। नहीं, प्योर नहीं होगा, उसके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अदर प्रोटीन्स और आरएनएज हमें मिल सकते हैं। वॉशिंग एंड रीसस्पेंशन, वॉशिंग विथ 70% इथेनॉल एंड रीसस्पेंशन इन टीई बफर और डिस्टिल्ड वाटर। बफर और डिस्टिल वाटर में भी जब हम वॉश करेंगे 70% इथेनॉल के साथ सैंपल को, तो कुछ डीएनए रिलीज होगा वहां से भी। नेक्स्ट प्लीज। फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन involves separating DNA from proteins using a mixture of phenol and chloroform. क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? प्रोटीन्स और आरएनए के जो जितने भी ट्रेट्स होंगे उसको डाइजेस्ट करेगा, लेकिन इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज ये है कि हाई यील्ड एंड प्योरिटी, मतलब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो प्योर मिलेगा विथ हाई यील्ड, और लेकिन कौन है इसका कि टाइम कंज्यूमिंग है, यूजिंग टॉक्सिक केमिकल जो डीएनए को हार्म कर सकते हैं। तो ये हमारे सैंपल पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग सैंपल है हमारे पास। नेक्स्ट प्लीज। Silica column base extraction. Okay. Uses a silica membrane that binds DNA in the presence of केओट्रोफिक सॉल्ट। ओके, क्या होगा? डीएनए के सैंपल के साथ कुछ ऐसे सिलिका के ट्रेट्स होंगे जो कि सिलिका और
सॉल्ट के साथ मिक्स होकर डीएनए इज वॉश्ड एंड एल्यूटेड विथ बफर और वाटर। वाटर और बफर के साथ जब उसे वॉश करेंगे तो प्योर डीएनए हमें मिलेगा। प्रोज है क्विक एंड कन्वीनियंट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन। मतलब अगर हमें सैंपल कोई अपनी स्टडी करना है तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, लेकिन कोई सैंपल को टेस्ट करना है जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है हमारे पास, तो दैट इज फॉर हिम। कौन से कॉस्टलियर देन सम अदर मेथड, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी। नेक्स्ट प्लीज। मैग्नेटिक बीट बेस्ड एक्सट्रैक्शन। अच्छा, क्योंकि जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो चार्ज मॉलिक्यूल है, तो कुछ ऐसे बीट्स हम बनाते हैं मैग्नेटिज्म को यूज करके सिलिका के साथ, कि जब हम डीएनए के साथ उसे ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल सेपरेट होकर केवल बीट के साथ डीएनए अटैच हो जाएगा। बीट्स आर मैनिपुलेटेड यूजिंग अ मैग्नेट एंड डीएनए इज एल्यूटेड। मतलब हम उसे अपने सैंपल के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्रो अवेलेबल, हम हाई स्केल पे भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटेड है, कोई हमें मैकेनिकल या लेबर नहीं चाहिए, एंड एफिशिएंट है, दैट इज वेल एंड फाइन। रिक्वायर्ड स्पेशलाइज इक्विपमेंट। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट है। नेक्स्ट प्लीज। अल्कलाइन लाइसिस, नाम से समझ में आ रहा है, जब हम लाइसिस करेंगे कोई भी अल्कलाइन मेथड के थ्रू यूजिंग अल्कलाइन कंडीशनर्स। Alkaline से समझ में आ जाता है NaOH यूज होगा to lyse cells and release DNA, often combined with neutralization and precipitation steps. न्यूट्रलाइजेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रोज है सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, जो हमारे लैब्स में यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स को बेसिक बताने के लिए, तो वो यही टेक्निक है अल्कलाइन लाइसिस। प्रोज है सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन। कॉज में नॉट अचीव हाई प्योरिटी, प्योरिटी के साथ डीएनए नहीं मिलेगा, केवल एक आइडिया लगता है कि कैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Salting out. Proteins are precipitated by high salt concentration and DNA is then isolated by alcohol precipitation. पहले सॉल्ट के साथ लाइसिस होगा, देन प्रेसिपिटेट होगा अल्कोहल के साथ। नॉन टॉक्सिक है, इनएक्सपेंसिव है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एफिशिएंट फॉर मॉडर्न मेथड्स। ये भी लैब में बहुत यूज होता है, जो कॉमन लैब्स होती है स्कूल्स की, कॉलेजेस के, वहाँ पर पहले सॉल्ट के साथ उसे ट्रीट करेंगे ताकि सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाए, सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाए, और देन उसे प्रेसिपिटेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो बेस में मिलेगा हमें वो वही होगा। नेक्स्ट प्लीज। सी टैब, ये भी लैब्स में यूज होता है। सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मेथड, सी टैब है, बहुत बड़ा नाम है। Commonly used for plant DNA extraction due to its effectiveness in removing polysaccharides and phenolic compounds. क्योंकि प्लांट में phenolic compounds हमें मिलेंगे, polysaccharides भी वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो अगर एनिमल सेल पे हम यूज़ करेंगे तो एनिमल सेल का डीएनए इसमें हार्म होगा, तो मेनली यूज़ किया जाता है प्लांट सेल के लिए। डीएनए precipitated using CTAP and alcohol. Pros is suitable for tough tissues like plants, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल है, उसे भी डाइजेस्ट करवाना है। कौन है, रिक्वायर मल्टीपल स्टेप एंड केयरफुल ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर गया, थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज हुई, तो एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज मेंशन। मैं ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. Wow, what an informative and thought-provoking session. Thank you so much, ma'am, for providing such valuable insights into the application of DNA technology in criminal forensics. The way you have covered the evolution of these techniques from foundational methods to cutting-edge molecular technique has truly eye-opening. It's clear that DNA has become not just a tool but a cornerstone of
modern forensics, and your expertise has helped us appreciate its true potential. Now, let's see if there are any questions. Ma'am, yes, there are questions. So the first question, I'm ma'am, in not cases getting of this. Okay. ma'am, ma'am, the question first is, in case of time, since deposition of any biological samples, are there will be chances of DNA degradation? Which method is suited for the extraction? C type for plant and magnetic beads for animal cell. Ma'am, next question. May I know the extraction process of DNA from hair sample? Hair sample. Yes, ma'am. Yeah, when hair is treated with some fine chemicals, so the thinning of hair, मतलब जो hair की जो membrane होगी उसे हम निकालेंगे, तो जो हमारे पास मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस होगा. Okay. Does नेक्स्ट anyone प्लीज. have any doubt? No doubts? And with that, we come to the end of day 2. 2-day online National Forensic Science Workshop organized by Shivi Forensics. It has been an enriching experience and I hope you all found the session insightful and thought-provoking. On behalf of everyone here, I would like to extend our heartfelt gratitude to our distinguished speakers, Ms. Srishti Sharma ma'am and Ms. Sudhanshi Sharma ma'am, for sharing their expertise and knowledge with us. Their contribution have truly helped deepening our understanding of the fascinating and ever evolving field of forensic science, from DNA technology in criminal forensics to the advancement in fingerprinting techniques. A huge thank you to all the participants for your active engagement and interest throughout the workshop. Your participation and enthusiasm have made this event even more impactful. We hope that insights gained over the last 2 days will inspire you to explore and contribute to the field of forensic science, whether through research, practical application, or further learning. Before we conclude, I would like to remind everyone that this is just the beginning of continuous journey of knowledge and discovery in forensic science. Please feel free to stay connected with Shivi Forensics for future events and workshops. Once again, thank you for all for being the part of the workshop and we look forward to seeing you all in future sessions. Wishing you all the best in your endeavors and may your curiosity in forensic science continues to grow. Thank you everyone. Thank you, Forensics, for